Obituary reference. Honorable members, with profound grief, I have to inform the House about the passing away of our colleague and 4 former colleagues. Dr. Ricky Andrew J. Singon was a sitting member of the 18th Lok Sabha representing the Shillong Parliamentary Constituency of Meghalaya. He was also a member of the Committee on Chemicals and Fertilizers. Dr. Ricky Andrew J. Singon passed away on 19th February 2026 in Shillong, Meghalaya at the age of 54 years. Kumari Sushila Thiriya was a member of the 10th and 11th Lok Sabha representing the constituency, representing Mayurbanj Parliamentary Constituency of Odisha. She also served as a member of Rajya Sabha for 2 terms. She was a member of various parliamentary committees. Kumari Sushila Thiriya passed away on 1st February 2026 in Bhubaneswar, Odisha at the age of 69 years. Sri Devi Bakht Singh was a member of the 10th, 11th and 12th Lok Sabha representing the Unnao Parliamentary Constituency of Uttar Pradesh. Sri Singh was also a member of several parliamentary committees. Sri Devi Bakht Singh passed away on 9 February 2026 in Kanpur, Uttar Pradesh at the age of 85 years. Sri Punmasi Ram was a member of the 15th Lok Sabha representing the Gopalganj Parliamentary Constituency of Bihar. He had served as a member of the Committee on Food, Consumer Affairs and Public Distribution. Earlier, he was a member of the Bihar Legislative Assembly for 5 terms and served as a minister in government of Bihar. Sri Purnamasi Ram passed away on 25th February 2026 in Patna, Bihar at the age of 76 years. And Sri K.P. Unnikrishnan was a member of the 5th, 6th, 7th and 8th, 9th and 10th Lok Sabha representing the Vadagara Parliamentary Constituency of Kerala. He served as the Union Minister of Surface Transport and Minister of Communications and also a member of several parliamentary committees. A widely travelled person, Sri Unnikrishnan was a member of various Indian delegations to represent the country abroad. Sri K.P. Unnikrishnan passed away on 3rd March 2026 in Kozhikode, Kerala at the age of 89 years. The House deeply mourned the loss of our present colleague and 4 former colleagues. I am sure the House would join me in conveying our condolence to the bereaved families. The House may now stand in silence for a short while as a mark of respect to the memory of the departed. The House stands adjourned to meet at 12 o'clock. The House stands adjourned to meet at 12 noon. Thank you. आदरणीय सभापति जी, हमारे देवी देवताओं का अपमान 140 करोड़ देशवासियों के दिलों को गहरी चोट पहुंचा रहा है। निजी राजनीतिक स्वार्थ के लिए ईश्वर के रूपों का इस प्रकार से खेल, आदरणीय सभापति जी, ये देश कैसे माफ कर सकता है? आदरणीय सभापति जी, सदन के कल के दृश्यों को देख करके अब हिंदू समाज को भी सोचना होगा, क्या ये अपमानजनक बयान संयोग है या कोई प्रयोग की तैयारी है? ये हिंदू समाज को सोचना पड़ेगा। आदरणीय सभापति जी, हमारी सेनाएं
देश का अभिमान है। सारे देश को उनके साहस और हमारी सेना की वीरता पर गर्व है। और आज सारा देश देख रहा है हमारी सेनाएं, हमारा डिफेंस सेक्टर आजादी के बाद इतने सालों में जितना नहीं हुआ, इतने रिफॉर्म हो रहे हैं। हमारी सेना को आधुनिक बनाया जा रहा है। हर चुनौती को हमारी सेना मुंह तोड़ जवाब दे सके, इसलिए युद्ध के सामर्थ्य वाली सेना बनाने के लिए हम भरपूर प्रयास कर रहे हैं, रिफॉर्म कर रहे हैं, कदम उठा रहे हैं देश की सुरक्षा का मकसद लेकर के। बीते कुछ सालों में बहुत सारी चीजें बदली है। सीडीएस का पद बनने के बाद इंटीग्रेशन और सशक्त हुआ है। आदरणीय सभापति जी, हमारी सशस्त्र सेनाओं के बीच उनके सहयोग से जो लंबे समय से युद्ध शास्त्र के निष्णातों का मत था कि भारत में थिएटर कमांड जरूरी है, आज मैं संतोष के साथ कह सकता हूं कि सीडीएस व्यवस्था बनने के बाद देश में सुरक्षा के लिए जरूरी थिएटर कमांड की दिशा में प्रगति हो रही है। आदरणीय सभापति जी, आत्मनिर्भर भारत, उसमें हमारी सेना को आत्मनिर्भर बनाना, उसकी भी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है। हमारी देश की सेना युवा होनी चाहिए। सेना दुश्मनों के दांत खट्टे करने के लिए होती है। हमें हमारे युवाओं पर भरोसा होना चाहिए। सेना में युवाओं की ताकत बढ़ानी चाहिए और इसलिए हम लगातार युद्ध योग्य सेना बनाने के लिए रिफॉर्म कर रहे हैं। समय पर रिफॉर्म न करने के कारण हमारी सेना का बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन ये सार्वजनिक बातें कहने योग्य नहीं होने के कारण मैं मेरे मुंह को ताला लगा करके बैठा हूं। आदरणीय सभापति जी, देश की सुरक्षा एक गंभीर मसला होता है। आदरणीय सभापति जी, ऐसे रिफॉर्म्स का उद्देश्य किसी भी परिस्थिति में, अब युद्ध के रूप बदल रहे हैं, संसाधन बदल रहे हैं, शस्त्र बदल रहे हैं, टेक्निक बदल रही है। ऐसे में हमें हमारी सेनाओं को उसी चुनौतियों के अनुरूप तैयार करना, ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है, जिसको निभाने के लिए गालियां खा करके भी, झूठे आरोप सह करके भी, मुंह पर ताला लगा करके हम काम कर रहे हैं। खुलेआम एक जाति को दूसरी जाति के खिलाफ लड़ाने के लिए रोज नई नई नैरेटिव कर रही है, नए तय अफवाहें फैला रही है। आदरणीय सभापति जी, देश के एक हिस्से के लोगों को हीन बताने की प्रवृत्ति का भी कांग्रेस के लोग बढ़ावा दे रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, कांग्रेस देश में आर्थिक अराजकता फैलाने की दिशा में भी सोची समझी चाल चल रही है। चुनाव के दौरान
जो बातें की गई राज्यों में, उनके राज्यों में जिस प्रकार से आर्थिक कदम ये उठा रहे हैं, ये वो रास्ता आर्थिक अराजकता की तरफ देश को घसीटने वाला है। उनके राज्य देश पर आर्थिक बोझ बन जाए, ये खेल जानबूझ करके खेला जा रहा है। मंचों से साफ साफ घोषणा की गई, अगर इनके मन का परिणाम नहीं आया, 4 जून को देश में आग लगा दी जाएगी, लोग इकट्ठे होंगे, अराजकता फैलाएंगे। ये अधिकृत रूप से आह्वान किए गए, ये अराजकता फैलाना इनका मकसद है। भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सवालों के घेरे में लाकर अराजकता फैलाने का प्रयास किया गया है। सीएए को लेकर जो अराजकता फैलाई गई, देश के लोगों में गुमराह करने का जो खेल खेला गया, पूरी इकोसिस्टम इस बात को बल देती रही ताकि उनके राजनीतिक मकसद पूरे हो। आदरणीय सभापति जी, देश को दंगों में झोंकने के भी कुत्सित प्रयास पूरे देश ने देखे हैं। आदरणीय सभापति जी, आजकल सिंपैथी गेन करने का एक नई ड्रामेबाजी शुरू की गई है। नया